Hello and welcome to the session, students. In the last session, we saw the image tag, image img tag, how to insert images in the web page, and then marquee tag देखा था. Marquee means applying scrolling effect, applying moving text या moving image को किस तरह से web page पर insert किया जाता है. That we saw in the marquee tag. Okay, so those two topics were over. The new topic for today is hyperlinking in HTML. Now, what do you mean by hyperlinking? See, whenever you must be visiting any website is what? Collection of web pages, right? Collection of all those web pages are interconnected, are interlinked with each other with the help of something very specific. What is that called? I know you must have said the answer. They are connected with the help of link, right? How to create that links? HTML allows us to create those links, right? Creating those links means making the text active. So active means whenever the user will click on that text, it will get diverted to some other page or some other part of the document and so on, right? So let us see how to do that in HTML. HTML allows us to create hyperlink. Okay, so the topic for today is hyperlinking in HTML. What we will be doing now, हम लोग यहाँ पर एक URL से, URL means the specific address, uniform resource located, उसको unique address रहता है हर एक पेज को या हर एक फाइल को in the PC. That URL we will be using for creating the hyperlinks. Okay, so let us start with first. Here I will explain you. See, I'm writing click here to go to Google. ठीक है, यहाँ पर क्लिक हियर टू गो टू गूगल लिखा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, राइट? इसको हमें हाइपरलिंकिंग इफेक्ट देना है. हाइपरलिंकिंग मींस आई वांट टू मेक इट एज अ लिंक, मींस इट विल अपीयर on my page as a link. Whenever the user will click on this text, rather link, it will get diverted to the home page of HTML. Oh, sorry, home page of Google. Okay, I hope this is clear. How to do that now? Let's save it this much. File, save, and we'll save it as link.html and save. Okay, let us open that. Right click, open with Internet Explorer. Click here to go to Google. Is it a link? How to recognize that it is a link or not? See, it will be the pointer will be hand shaped for the links. It will be blue in color by default and underlined text. Okay, so यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ना ये blue है, ना hand shape हो रहा है और ना ही underline है. तो it is a normal text appearing on my web page. अब क्या करूँगी मैं यहाँ पर? इसको hyperlink बनाने के लिए HTML का tag use होगा, obviously. So the tag used for creating links in HTML is a tag. I'm saying this again. A tag use होगा for creating hyperlinks in HTML. Okay, यहाँ पर आके मैंने A tag को close किया. Capital or small doesn't matter. Okay, so A tag. A stands for anchor tag. A tag से hyperlink create होगा. File, save and refresh. कुछ हुआ? Of course नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? The reason is A is used for creating hyperlink, but hyperlink आप create कर रहे हो, that means it will be a link. Whenever the user clicks on this, it will something get opened, right? तो यहाँ पर आपको वो something का URL देना पड़ेगा कि which document you want to open whenever the user clicks on this link. So for that, A tag का एक attribute use होता है href, that is hyperreference, equals to the URL. इस तरह से URL नहीं लिखना है, मैं बता रही हूँ आपको. URL of the document which you want. URL of the document which you want to open जब user इस link पर click करेंगे. Okay, so अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ इस लिंक पर क्लिक करने पर यूजर को google.com ओपन होना चाहिए, यानी गूगल का होम पेज ओपन होना चाहिए. तो फॉर दैट व्हाट I'll write the URL of Google, http://www.google.com.
ओके, आई हैव एनक्लोज्ड इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि हो सकता है किसी यूआरएल में अगर आप किसी फाइल को रेफर कर रहे हो एंड इट इज देयर इन सम फोल्डर्स और समथिंग, स्पेस होने के चांसेस हैं, सो फॉर दैट हमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करना चाहिए. So let's see the effect. File, save and refresh. See, now the change you can see, it is blue in color, it is underlined, and it is, see the hand shaped arrow. Okay, so now this is a hyperlink. What to do? I'll click on this and let's see it got changed to purple color, means the link is now visited. Google.com open hua. See here you can see the URL. Okay, so I'll go back to my page, and here it is now purple in color. Why purple? Because it is visited link. By default the links are blue in color. By default दो colors use होते हैं, blue that is for the link and purple for the visited link. We can change the colors, we'll see afterwards how to do that. Now कमिंग टू नेक्स्ट. नाउ यहाँ पर एक मैंने वेब बेस्ड यूआरएल पे आपको एक लिंक क्रिएट करना सिखाया. नाउ यहाँ पर हम एक क्लिक हियर टू सी माय अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रोग्राम. हमने किया था, आपको याद होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी हमने, और वो प्रोग्राम को हम लिंक क्रिएट करते हैं. कैसे? मीन्स इसी पीसी की फाइल को मैं लिंक का यूआरएल दूंगी यहाँ पर, सो दैट ये एक लिंक क्रिएट हो. कैसे? यहाँ पर मैंने लिखा a tag of course and a tag close. This much is clear I hope. a tag सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा. क्या लिखना है यहाँ पर? href, that is the hyper reference. hyper reference में हमें क्या देना है? जो भी फाइल आपको इसमें ओपन करनी है उसका URL. ठीक है, URL अब कैसे लाएं? यहाँ पर वो फाइल तो हमारे पास ही है. क्या करना है उसके लिए? जहां पर आपकी वो फाइल स्टोर्ड है वहां आपको जाना है. Where is it? Your unordered list. Right click, properties, and see here you will get the URL of this, the location. Okay, the path of the image. Okay, you can just copy it from here and paste it in your document. Now, okay, आफ्टर दिस सी यूजर्स लविंग डॉक्यूमेंट्स HTML के बाद हमें क्या देना है? हमने इमेज इंसर्ट किया था, तब हमने सीखा था यहाँ पर HTML फोल्डर के अंदर मेरी फाइल है, तो html/ul.html. ओके, नाम इजी इसलिए मैंने टाइप किया, अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ कॉपिंग इट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज. सी now this is the URL of the file to be opened when the user clicks on this text. Okay, I hope this much is clear. File, save, let's see what happens, and refresh. See the color. Okay, now let's do it. Let's click on this. Click here to see unordered list program. Open हुआ. Okay, so here आपने अब तक क्या सीखा कि a tag और href एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं. एंड हाइपर लिंक में हमें क्या प्रोवाइड करना है? हमें जो फाइल ओपन होनी चाहिए उस फाइल का URL डालना. Okay, so just for the separation I'll insert one HR. HR stands for horizontal ruler. Okay, horizontal ruler से color equals to red. Save. अब याद होगा ये प्रोग्राम, नहीं है तो वो वीडियो चेक कीजिए. Okay, so now next, now I'll create one more hyperlink. See, let's see, HR just for separation equals to say blue. Now I want an image as a hyperlink. ये तो हमने देखा text as a hyperlink, right? ये text थी, इस पे क्लिक करने पर ये डॉक्यूमेंट ओपन हुआ. But I want an image as a hyperlink. तो क्या होगा? Whatever is enclosed, students listen carefully, whatever is enclosed between this a tag open and a tag close will act as a hyperlink. राइट. सो ए टैग ओपन, ए टैग क्लोज के बीच में टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट हाइपरलिंक हो जाएगा. अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? इमेज. तो इमेज के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज टेल मी img टैग. ओके, img src इक्वल्स टू, img src क्यों लिखते हैं? img से सिर्फ इमेज नहीं आएगा, src से हमें कौन सी इमेज चाहिए उसका सोर्स हम यहाँ पर लिखेंगे एंड इमेज विल बी इंसर्टेड इन माय वेब पेज. इमेज इंसर्ट हो जाएगी, बट इस इमेज को लिंक बनाने के लिए हमने उसके आगे पीछे क्या किया? ए टैग एंड ओपन एंड ए टैग क्लोज. बट ऑल्सो इट विल
be with href. href will also come for that. Now let us start. img src, यहाँ पर कौन सी इमेज चाहिए? Suppose I wanna मीडिया से एक जेपीजी इमेज लेती हूँ मैं यहाँ पर, से दिस डिज्नी कैरेक्टर. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई थिंक आपको पता है, याद है ये चीज. प्रॉपर्टीज, अगेन यू नीड टू कॉपी दिस लोकेशन, paste it. This is the source of the image. Is it complete? No. jpg के बाद एक स्लैश चाहिए and इस फाइल का नाम. Shall I type it? No. I shall copy and paste it simply. Properties, select, right click, copy, and now this is the complete URL of the image, complete path, complete location of the image which I want to be inserted on my web page. Okay, this thing will insert the image. Link create नहीं हुई है अब तक, image insert हुई है मेरे web page पर. Image insert होने के बाद, okay, चलो this much we'll see. Okay, then we'll do this. File, save and refresh. Is that clear? I hope this much is clear. See, is it a link? Look at the arrow. You can see with the arrow. नहीं ना, link नहीं है. ये link है, ये link है, ये link है क्या? नहीं. तो link बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें a tag लिखना पड़ेगा. ahref equals to be on a safer side. क्या करें? क्या open करें इससे? से हम कोई फाइल ही लेते हैं जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. Nested list लेते हैं. Okay. So for that, what to do? Right click, properties, copy and paste, slash nested.html. Okay, so nested.html file. Oh sorry, a tag यहाँ पर close करना है हमें. A tag close. File, save and refresh. Refresh किया हमने यहाँ पर. See, you can see this image and you can see the hand shaped arrow. Okay, so this means it is a hyperlink. Click on this image. See, nested.html, the states of India जो हमने बनाया था वो फाइल यहाँ पर ओपन हो गई. Now see students, अब इमेज के साथ हमें, आपको याद होगा इमेज के एट्रीब्यूट्स देखे थे. I want border of the image. Say border equals to 2. Save, refresh. You'll get the border. Right? Then you have height and width. चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो. Height equals to, width equals to, save and refresh. Okay, so this way you can create image as a hyperlink. What you have to do is enclose the image between a open and a close, and a tag में href attribute में आपको URL of that URL लिखना है या address लिखना है of the web page which you want to. Okay, I hope this much is clear. Now one more time I'll do one thing. HR color equals to, say, one more time I'll insert one image and practice it with image. See, just see students. img src equals to, क्या डालना है यहाँ पर? किसका पाथ लिख रहे हैं हम? इमेज का. So ओके, सो यहाँ पर मैंने इमेज src इमेज में ये इमेज इंसर्ट की है वेब पेज पर. सिंपल है. ओके, अब इसको लिंक बनाएं. यस, कैसे बनाना लिंक? a टाइप में. ओके, सो ahref equals to, in inverted commas, I want that jpg image. Okay, so say this and 2.bmp. सिंपल नेम है तो आप लिख भी सकते हो, ऐसे कुछ इशू नहीं है. ए टैग को क्लोज किया.
Okay, so file, save and refresh the web page. Inserted? Yes. What is inserted? GIF is inserted. इमेज में जो आप लिखोगे वो वेब पेज पर आएगा. ये कहाँ है? 2.bmp तो डाला था, ये 2.bmp हमने इंसर्ट नहीं किया है. हमने इस फाइल का URL दिया है कि यूजर जब इस लिंक पर क्लिक करेगा देन दिस फाइल शुड गेट. ओके, सो फॉर दैट हमें यहाँ पर रिफ्रेश करना है एंड जस्ट क्लिक. सी दिस गॉट ओपन. द लुक एट द URL. Okay, I hope this much is clear. Now one more thing I want to tell you here. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, क्लिक here to see my unordered list का प्रोग्राम. ओके, ये अब बता रही हूँ क्योंकि आपको ये URL समझना जरूरी था. ये link.html कहाँ पड़ी हुई है? Seek users login documents HTML फोल्डर के अंदर ही है जहां ये UL है, isn't it? See, ये यहीं पर है, ये लिंक और ये UL. आर दे बोथ इन द सेम फोल्डर, राइट ना? ये लिंक भी जो फाइल एक्सेस कर रही है और जिस फाइल को एक्सेस कर रही है वो दोनों एक ही फोल्डर में है. सो हियर यू कैन जस्ट ओमिट दिस पाथ. ये नहीं दिया तो भी चलेगा. जस्ट href में आपने लिखा कि ul.html, automatically it will be searched in the same folder. If it is available then that file will get opened. Okay, so file, save and refresh. Okay, so no problem. See, the same URL is come. Whenever the file is in same folder, you can just omit the path. You can use the name of the file. Okay. Now, I will tell you that अगर एक link आपको create करनी है, जो link होगी to an email address. Now, what does that mean? See, click here to go to write us. होता है ना फीडबैक वेबसाइट्स पे, राइट? तो यहाँ पर वो लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं. लिंक प्रोवाइड करके क्लिक करते हैं हम, तो उनकी मेल आईडी पे हम मेल डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं. और यू कैन जस्ट प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस ऑल्सो, बट लिंक भी क्रिएट कर सकते हो कि लिंक क्लिक करते ही मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड एड्रेस आपका आ जाएगा जहां पर फीडबैक आप चाहते हो आने के लिए, एंड देन द यूजर कैन राइट द मेल टू यू. ओके, सो क्लिक हियर टू राइट अस. इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा. यहाँ पर टू मेक इट अ लिंक, ऑफ कोर्स आई विल हैव टू यूज ए. ओके, सो ए href आएगा एंड यहाँ पर ए टैग क्लोज होगा. ए href में आपको यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज मेल टू. ओके, मेल टू विदाउट एनी स्पेस कोलन द एड्रेस से abc@gmail.com. से दिस इज द एड्रेस ऑफ माइन जो मैं चाहती हूँ यहाँ पर मुझे मेल आए फ्रॉम द यूजर्स. सो मेल टू, एड्रेस डाल दिया और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया. इस पर क्लिक करते ही यूजर्स को प्रोविजन मिलेगा कि इस एड्रेस पर आप मेल करो. सी, जस्ट सी द इफेक्ट. फाइल, सेव एंड रिफ्रेश. ओके, क्लिक हियर टू राइट अस. जैसे मैंने क्लिक किया, अलाउ, मेल बॉक्स ओपन होगा. whichever will be the app in your this Outlook, in your PC. Here it is Outlook. See, from so and so person to में अपने आप automatically address आ गया, right? So this way you can just create a link which will forward for the mail. So click here to write us. इस तरह से हमने किया. Now दिखाने के लिए था ये आपको कि मेल टू भी यूज कर सकते हैं. One more thing I want to tell here, which is, see students, in a tag हमने अभी तक a tag को देखा और एक ही एट्रीब्यूट यूज किया, दैट इज href. a का एक और एट्रीब्यूट है टाइटल. a का एक और एट्रीब्यूट है. href से क्या कर रहे हैं हम? हाइपर रेफरेंस दे रहे हैं, द URL दे रहे हैं जो ओपन हो, जो URL दे रहे हैं जो उस फाइल का जो ओपन होनी चाहिए. यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट से हम टाइटल भी दे सकते हैं. कैसे? सी टाइटल दिया मैंने, say this is the image of Krishna, right? So I'll write Krishna here, save and refresh. क्या हुआ यहाँ पर देखो, see the tooltip coming. कृष्णा दिखाई दे रहा है, मीन्स दिस लिंक विल टेक मी टू दिस पेज. यहाँ पर अगर आपको किसी कंपनी के किसी पर्टिकुलर से फीडबैक फॉर्म पर लेके जा रहे हो तो यहाँ पर लिंक बताएगा. से यहाँ पर लिखते हैं
टूल टिप से बताएगा कि वे यू विल बी डाइवर्टेड, लाइक लिटिल हिंट विल बी गिवन, से टाइटल इक्वल्स टू फीडबैक, save, refresh. Okay, so I hope this much is clear to everyone. So this way you can create links in your web pages using the a tag, using the href attribute of the a tag. Okay, for title, for giving the title attribute is there. Now next is the linking within the same page, means ये आपने क्या किया, यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया, क्लिक किया, नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, नेक्स्ट फाइल ओपन हुआ, एनी फाइल एनी पेज यू कैन ओपन. यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं उसमें उसी डॉक्यूमेंट की विद इन, इफ इट इज अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट, यू कैन क्रिएट द लिंक्स इन द डॉक्यूमेंट सो दैट उस लिंक पर क्लिक करते एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पर पहुंचा जा सके. दैट इज कॉल्ड लिंकिंग विद इन द सेम पेज. उसके लिए भी हमें ए टैग ही यूज होगा, बस एक एट्रीब्यूट एडिशनल आएगा, दैट इज नेम एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग. सो दिस मीन्स ए के हमने 3 एट्रीब्यूट सीखे, href, नेम एंड टाइटल. मैं यहाँ पर ये चीज हाईलाइट करके बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पर बच्चे 48, 49, 50 में से 48, 49 मार्क्स लेके अटक जाते हैं, वो 1-2 मार्क फिलअप पे चली जाती है, क्योंकि फिलअप थोड़े से ट्रिकी आते हैं. फिलअप में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग, वहां पर नेम भी रहेगा, नेम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है. ओके, सो हर एक टैग के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है. नेम टैग स्पेशली, या इस तरह से भी एक बार आया था कि इनमें से कौन सा टैग है ए टैग का जो लिंकिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है फॉर द सेम पेज, तो वहां पर नेम इज द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट. ओके, सो ए के हमने 3 एट्रीब्यूट सीखे, href, टाइटल एंड नेम, जो आगे सीखने वाले. Okay, I hope this much is clear to everyone. Let us proceed for linking within the same page. Next हम देखेंगे linking within the same page. यहाँ पर मैंने basic structure टाइप किया so that time ज़्यादा ना लगे. Linking within the same page इसका टाइटल रखा हुआ है. Now body में यहाँ पर एक actually lengthy web page हमें create करना है. क्यों हमें linking within the same page देखना है? तो lengthy होगा तो ही तो समझ में आएगा कि एक पार्ट ऑफ द वेब पेज से मैं दूसरे पार्ट ऑफ द वेब पेज पर जंप कर रही हूँ. ओके, सो यहां पर मैंने लिखा दिस इज लिंकिंग विद इन द सेम पेज. ओके, इस तरह से मैंने लिखा एंड लेंदी क्रिएट करने के लिए कॉपी एंड जस्ट कॉपी किया एंड पेस्ट द कंटेंट. n number of times just to create a lengthy web page. ओके, ठीक है, इतना किया. सेव करते हैं, फाइल सेव, वहीं पे सेव करते हैं, नाम देते हैं link2.html एंड सेव. ओपन करने के लिए गो टू द लोकेशन, राइट क्लिक, ओपन विथ ब्राउजर. सी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक लेंदी वेब पेज. ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 लिंक्स क्रिएट करते हैं. यहाँ पर लिंक देंगे, क्लिक करेंगे तो बॉटम ऑफ द वेब पेज में जाना चाहिए. बॉटम में एक लिंक देंगे, वहां पर हम क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ द वेब पेज में जाना चाहिए. राइट, सो ये दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल. ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर एक ही पेज में डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सपोज स्टार्टिंग में JEE के लिए, देन नीट के लिए इंफॉर्मेशन है, देन डिफरेंट एग्जाम्स के लिए है, सो वहां पर लिंक्स प्रोविजन रहता है कि आप क्लिक हियर टू गो टू दैट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो इस तरह से लिंकिंग विद इन द सेम पेज यूज करके हो सकता है. हम यहाँ पर इस सिंपल से एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है. नाउ व्हाट आई डू हियर ना स्टूडेंट्स, ए टैग यूज करूंगी और ए टैग में नेम एट्रीब्यूट यूज करूंगी. नेम इक्वल्स टू, से मैंने नाम दिया यहाँ पे टॉप, आप कुछ भी नाम दे सकते हो. ओके, एंड सपोज यहाँ पर लास्ट में आकर मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर एक नाम दिया ए, नेम इक्वल्स टू से बॉटम. ओके, अब ये नाम देने से क्या होगा, इस सेक्शन में ये नेम एट्रीब्यूट, दिस विल एक्ट एज अ सेक्शन जिसका नाम होगा बॉटम. आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिंक क्रिएट कर रही हूँ, CAHREF इक्वल्स टू, कहाँ जाना है हमें, बॉटम में. कब जाना है, जब यूजर
क्लिक करेगा आपको. सो यहाँ पर मैंने एक लिंक देती हूँ उसको. क्लिक हियर टू गो टू द बॉटम ऑफ द पेज. अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन है तो यहाँ पर वो नाम आप लिख सकते हो. ओके, सो क्लिक हियर टू गो टू द बॉटम ऑफ द पेज लिखा एंड देन ए टैग को मैंने क्लोज किया. फाइल, सेव एंड रिफ्रेश. लेट्स सी, मैं ये वेब पेज पर हूँ. स्क्रॉल से भी ऑफ कोर्स हो सकता है बट पर्टिकुलर सेक्शन स्क्रॉल से ढूंढना पड़ेगा ना. अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है, लिंक दिया डायरेक्टली, वो दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. सो क्लिक हियर टू गो टू द बॉटम ऑफ द पेज. क्लिक किया, नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा AHREF इक्वल्स टू बॉटम. व्हाट इज बॉटम? बॉटम क्या है? बॉटम एक सेक्शन का नाम है जो इसी पेज में है. इसी पेज में है ये बताने के लिए यहाँ पर हैश की जरूरत है. ओके, सो यू नीड टू स्पेसिफाई दिस हैश एंड द नेम ऑफ द section where you want to direct the thing. Save and refresh. Okay, so let's refresh the page. Click here to go to the bottom of the page. Click here, see scroll bar ko dekhiye. Now I'm at the bottom of the page. Okay, same way we can create a link at the bottom to go to the top of the page. How to do that? Again, a tag is used for that. Linking ke liye AHREF, don't forget the hash top and click here. Okay, a close, save and refresh. Bottom of the page, bottom में आ गई, top of the page, bottom. Okay, I hope this much is clear. So a tag के हमने 3 attributes लिए, HREF, name and title. A is used for, A stands for anchor and it is used for creating hyperlinks in hyperlinks in HTML. Okay, so that's all for today's video. In the next video we will be doing paragraph tags and different few tags are remaining, and then we will be starting with the table tag, which is very important for both theory exam. Okay, so see you guys very soon next time. Bye bye, take care.